Hello students, welcome back to English Master. Today we will be covering second part of class 8th history chapter how, where and when. So in this chapter we had already covered how important the dates are and which dates should be picked to learn and to remember. I mean which are the important dates for us because they are changed for everywhere. And today we will be covering how do we periodize. So one पीरियड इज अ स्पान ऑफ टाइम, हाउ टू पीरियडाइज इट. तो हिस्ट्री में इसको कैसे पीरियडाइज किया जाता था दैट वी हैव टू लर्न. In 1817, James Will, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. तो एक 1817 में जेम्स मिल जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने और वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, उन्होंने एक 3-वॉल्यूम वर्क जो था एक बुक बहुत मासिव मीन्स बहुत बड़ी मोटी सी बुक को पब्लिश किया जिसका नाम आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. सो दिस वाज डिवाइडेड एज पीरियड्स इन पीरियड्स, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. This periodization came to be widely accepted and people liked it. When the span of time was divided into periods, it was liked by all. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? तो हम इस तरीके से भी इंडियन हिस्ट्री को देख सकते हैं, लाइक एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक. Why do we try and divide history into different periods? Then the question again arrives कि हम फिर ऐसा क्यों करते हैं, हमें ज़रूरत ही क्या है इसको डिवाइड करने की. We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central features as they appear to us. तो हम क्या एक अटेम्प्ट करते हैं कैप्चर करने के लिए कि जो विशेषताएं रहती हैं किसी भी टाइम में, तो उसमें जो भी स्पेशल चीज़ें हैं जो उस टाइम का सेंट्रल फीचर रहा है वो क्या था. So whenever we talk about any time, we pick a special event which took place or an incident that took place at that specific period of time. So the terms through which we periodize, that is democrate, the difference between periods become important. तो जो हम periodize करते हैं तो वो important हो जाता है कि हम किस तरह से उसको कर रहे हैं. They reflect our ideas about the past. तो वो हमारे past के ideas को reflect करते हैं. They show how we see the significance of the change from one period to the next. तो जब हम periodize कर देते हैं तो उसमें हमें महत्व पता चलता है. We are able to get to know the importance of one period to the another. When the changes happened, what were the changes and how were they? Mill thought that all Asian scientists were at a lower level of civilization than Europe. तो जब उसने कंपेयर किया तो उसने देखा कि जो एशियन सोसाइटीज़ थी वो कंपेयर टू यूरोप सोसाइटियन कैसी थी, सोसाइटी के लिए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, वो उतने सभ्य नहीं थे जितने कि यूरोपियन होते हैं. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपॉजिट्स रूल्ड the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated. तो उसका कहने का मिल की जो विचारधारा है वो ये है कि जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले हिंदूज़ में हिंदुइज़म और मुस्लिम्स में मुस्लिम्स का जो एक वो रहता है विचारधारा बहुत तीखी थी और वो लोगों के अपने कास्ट टैबू हुआ करते थे. बहुत सारे सुपरस्टिशियस जो थे प्रैक्टिस में हुआ करते थे, जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा सती प्रैक्टिस एंड ऑल इन प्रीवियस क्लासेस. सोशल लाइफ में ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. तो मिल ने बताया कि ये सब एक इंडिया को सिविलाइज इंडिया बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी कि यूरोपियन कल्चर को यहाँ पर वहाँ के आर्ट्स, वहाँ की एजुकेशन और वहाँ के नियम जो हैं वो इंडिया में लागू किए जाएं. सो दैट पीपल कम आउट ऑफ दिस सुपरस्टिशियस practices and they apply knowledge and they understand things and they do accordingly. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. तो मिल ने कहा, सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को
कॉन्कर जो करना है सभी टेरिटरीज इंडिया में, तो उन्हें चाहिए कि पहले इंडियन पीपल को क्या करें, दे शुड ब्रिंग हैप्पीनेस अमंग देम इफ दे वांट टू कॉन्कर इंडिया. For India was not capable of progress without British help, because they realized that the education was not there at all. People were not that well educated, or they did not have a good practice in their society. So for making them capable to progress, the help of British was so much required. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, सारी फोर्सेस प्रोग्रेस में और सिविलाइजेशन, भारत को सभ्य बनाने में लगा दी. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस. कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे. तो हम जो ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ऑल रॉन्ग, और इट इज ऑल अबाउट डार्कनेस विच टेल्स like there is no brightness in the or no positive vibes we get when we read about the British rule in our history books. तो क्या क्वेश्चन ये है, क्या ये कॉन्सेप्ट आज कोई एक्सेप्ट कर सकता है कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को पहले क्या किया, हैप्पीनेस लाने की कोशिश की, या हमें एजुकेट करने की कोशिश की, या हमें प्रॉस्परस करने की कोशिश की. इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज ए हिंदू और मुस्लिम. अब इस केस में क्या हम कोई ऐसा पीरियड है जिसे दो जगह डिवाइड कर सके कि वो हिंदू पीरियड रहा या मुस्लिम पीरियड रहा. डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स. तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैरायटी ऑफ फेथ्स नहीं रही है इस पीरियड्स में लगातार. वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम. तो क्वेश्चन ये आता है, फिर हम उस टाइम के रूलर्स को उनके रिलीजियस के बेसिस पे उस टाइम को हम पीरियडाइज क्यों करें. टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर. और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि उस टाइम में जो लोगों की प्रैक्टिसेस, जो उनके कार्यकलाप थे, तो वो जो थे हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं. वी शुड ऑल्सो रिमेंबर that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो हमें ये भी याद रखना है, in every place the faiths and rulers were different. जहाँ rulers अलग थे वहाँ faith भी अलग थे. तो पूरे इंडिया में सब जगह एक से religious faith वाले लोग नहीं रहते थे, because it is big India and everywhere people have different traditions and customs and their beliefs and faiths also according to their religion. Moving away from British classifications, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. इसलिए उन्होंने धर्म को ना लेकर के किस में डिवाइड कर दिया, जो सबसे पुरानी थी उसको एंशियंट कर दिया, जो मध्यकालीन था उसको मेडिवल कर दिया, और एक जगह कौन सी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई. This division has its problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. In that, science, reason, democracy, liberty and equality was also associated or mixed. तो कहते कि जो हमने ये जो कल्चर उठाया, ये जो पीरियडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट लिया, जो हमने कहाँ से बोरो किया, वेस्ट से बोरो किया, तो वहाँ क्या होता था, लोगों ने इसमें मॉडर्निटी को एसोसिएट किया था, जिसमें साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ों को ऐड किया था. मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. और उन्होंने मेडिवल पीरियड उन लोगों को लिए दिया था जहां पर ये सारे फीचर, कौन से फीचर्स, ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे. कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study. तो अब क्वेश्चन है कि क्या हम बिना क्रिटिसाइज किए जो हमारा कैरेक्टराइजेशन किया गया है ये 3 पीरियड्स में, इसको हम एक्सेप्ट कर लें आज की स्टडी के अकॉर्डिंग. As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of the economic growth and progress. तो उन्होंने इसको डिवाइड तो किया according to how they had divided. They borrowed the same culture, but they could not make the same difference as it was being there in Britishers, among Britishers. तो यहाँ पर ना तो इक्वालिटी आई, ना ही फ्रीडम और लिबर्टी थी,
और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस देखने को मिली। Many historians therefore refer to this period as colonial. colonial का मतलब होता है एक ही जगह सिमट कर रह जाना, तो यहाँ पर historians इसलिए इन periods को colonial periods कहते हैं। Now the question comes, what is colonial? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। उन्होंने क्या किया, जो हम इस बुक में देखेंगे कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए और हमारे कंट्री पर उन्होंने कॉन्कर करने के लिए क्या किया, पहले तो अपना रूल डेवलप किया, फिर सब्जुकेट मीन्स होता है कब्जे में ले लेना, लोकल नवाब्स और राजास को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश्ड control over the economy and society, and you will find they slowly controlled our economy also and society also, collected revenue to meet all their expenses. Revenue means tax, and what they did to bear their expenses, they collected taxes from the public, bought the goods they wanted at low prices, और जो चीज़ें उन्हें इंडिया से चाहिए होती थी वो उसे लो प्राइस में खरीदते थे। So no one was there to stop them or to put them to interrupt them. Produced crop they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. और वो हमारी जो क्रॉप्स होती थी प्रोड्यूस्ड की हुई, जैसे इंडिगो वॉज द वन क्रॉप विच वॉज exported by these Britishers, and they used to pay a very low amount to the farmers of Bihar. So from there this whole process started, and people started revolting against Britishers, and this is how India started to bring in a change, and they started removing Britishers from India. So that was the starting point. So you will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. तो आप देखोगे कि चेंजेस जो हैं ब्रिटिश रूल में वो वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस उनकी जो थी उसमें आए। When the subjugating of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. तो ये important factor है कि जब एक कंट्री में दूसरी जगह सब्जुकेट करके लीड कर ली जाती है तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो आते हैं वही कोलोनाइजेशन कहलाता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज कोलोनाइजेशन। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Pasts in the plural. तो हम देखते हैं कि ये जितने भी क्लासेस और ग्रुप्स थे तो वो सब जगह एक जैसे नहीं थे, तो हर अलग जगह पर उनका अलग पास्ट होगा क्योंकि लोगों की प्रैक्टिसेस सेम नहीं थी। इसीलिए इस बुक का नाम प्लूरल में पास्ट्स लिखा गया है, क्योंकि सबका पास्ट इंडिया में भी हर एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग था। हाउ डू वी नो? लेट अस नो अबाउट द क्वेश्चन। What source do historians use in writing about last 250 years of Indian history? कौन से sources थे जो historians ने 250 years के about the last 250 years के जो है हमारी history में add किए? तो वो क्या थे? Administration produces records. One important source is the official records of the British administration. तो हमारा मेन सोर्स कहाँ से आया जो 250 साल पहले का था? तो उसमें था कि उन लोगों ने रिकॉर्ड कलेक्ट किए थे। सो दे डिड नॉट लीव the things just like that. They had the records, they maintained it properly. The British believed that the act of writing was important. तो जो भी काम होते थे वो उसको लिख लेते थे। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. So they had all the things written, and so that it was very easy for the historians to find out what had happened before 250 years ago in India. Once this was done, things could be properly studied and debated. और जब ये सब हुआ, जब हम इन चीज़ों को देख पाए और पढ़ पाए तभी हम इनको समझ पाए और फिर ये डिबेट का क्वेश्चन का कारण बनी। दिस कॉन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज,
नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ से लोगों ने पिक किया कि हमें इस कल्चर को कंटिन्यू करना है। वी शुड बी राइटिंग एवरी सिंगल थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ट्रेड्स। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिश ने सोचा था कि उनके पास जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रिजर्व में सुरक्षित होने चाहिए। So they set up record rooms attached to all the administrative institutions. So when you see now in the offices, there is one corner where you can see the big files piled up. So from where this tradition has come, this tradition has come from here. They started here. The village tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the locals, ऑल हैड देयर record रूम्स। तो सभी के पास जब हम देखेंगे तो कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, या जितने भी सेक्रेटरीज हुए, लोग कोर्ट हुए, सबके पास क्या होते थे, record रूम होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक archives and museum were also established to preserve important records. So to ये क्या रीज़न था कि उस टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और म्यूजियम्स बने थे। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वी कैन से दैट बिकॉज दे वांटेड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट records, that why they had created. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top to प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो हम देखेंगे कि जो लेटर्स हैं, पुराने मेमोज हैं, वो भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को एडमिनिस्ट्रेशन में दिए गए और 19th सेंचुरी तक वो पढ़े जा सके। और हम स्टडी करते हैं कि जो नोट्स और रिपोर्ट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने प्रिपेयर किए थे, वो इंस्ट्रक्शंस जो उन्हें दिए जाते थे वो भी सब एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दीज ऑल वर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट टेल्स अबाउट द होल कल्चर, हाउ द थिंग्स वर डन इन द पास्ट। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. तो क्या हुआ, अर्ली ईयर्स में 19th सेंचुरी के इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली कॉपी किया गया, क्योंकि तब तक हमारे पास प्रिंट नहीं आया था, और फिर उसके बाद कैलीग्राफी में लिखाया गया। जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती थी वो उसको लिखते थे। और मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग आ गई। इंडिया ऑल्सो गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स, सो मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज कैलीग्राफी राइटिंग्स वर कलेक्टेड and the laws, orders and all those things were printed and they were again recorded and for further proceedings कि हमें इनको हेल्प लेते हुए कैसे कंट्री में आगे रूल करना है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनको स्टोर किया जाता था। सो टिल नाउ वी विल बी लर्निंग टिल हियर ओनली द स्टूडेंट्स। This surveys became important. This we will be covering in part 3. So I hope you understood till here. Do like and subscribe the channel for keeping updated yourself. Till then, take care. Bye.